Assalamualaikum everyone. In today's lecture, we are going to discuss about pharmacology first chapter from the book of Kierkegaard. ठीक है, तो in this chapter we are going to discuss that what is pharmacology and what is the history of pharmacology and what is the major branches of pharmacology. Okay, so now let's start the lecture. So in today's lecture we first discuss what is the definition of pharmacology. I have also give an introduction lecture of pharmacology from another book. But today in that book we again revise the introduction of pharmacology. So pharmacology is just a branch of medicine in which you are dealing and you are studying the medicines and the drugs. So it can be defined as the study of substances that interact with the living system, okay, with the living system, and you can say with the biological system. So biological system includes all the things which are present in your body. So pharmacology deals with that substance that interact with the living things. And what a thing come under your mind which interact with the living system? Of course, it is drug. The definition of drug is that it is a substance which is introduced into the biological system to produce a change. Okay, so in order to treat our body, in order to take and protect our body from the germs, we give a patient drug. So drug is dealing producing a change and to fight with that germ. So this is the basic definition of pharmacology, that we are dealing and we are studying the substance which is called as a drug, and uh, and it is producing and interacting with our living system. Okay, so through the chemical process, especially by binding to the regulatory molecules, sometimes of regulatory molecules present in our body, our drug, as we eat the drug, this drug goes into our body, interact with a special kind of receptor molecules and produce a special kind of molecules such like that. And after that the body produce the response and to fight with that particular germ and to save our body. So these substances can be chemically, administrative, can be have theoretical effect, and they uh, prevent the patient from the toxic effects. So the therapeutic applications on the patients is called as medical pharmacology, in which you are dealing and you are treating the patients by giving them the drugs. There is another branch of pharmacology which is called a toxicology. Toxicology is the branch in which we deal with the toxic chemicals and toxicity which can affect an individual cells. So undesirable effects are always produced by toxin, the harmful material which are present in our body. So toxin are nothing, they are just the harmful materials which can affect your biological system. So history of pharmacology is not at much importance, but you can learn it from this paragraph. This paragraph just explained that the history of pharmacology start from China and Egypt, and it also starts in the India also. So this is the just little history of pharmacology, but it's not important for the examination point of view. So let's just skip it, and if you want to read it, then just read this paragraph and that will be enough for you. Now next is as you can see, some main points I tell to you, which is Materia Medica. This is the science of drug preparations and the medicine. So ड्रग किस तरह से बन रही है और उसकी डेवलपमेंट क्या हो रही है, उसका प्रिकर्सर जो है, इसको डिस्कस करना भी हमारे फार्माकोलॉजी के अंदर ही आता है. ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट जो है एक्सपेरिमेंटल जैसे फार्माकोलॉजी हो गई, डिफरेंट ब्रांचेस मतलब दी गई हैं फार्माकोलॉजी की, तो उनको आप लोग देख सकते हैं. और ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी के ऊपर भी मैंने आपको लिए एक अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट उसमें कंफर्म हो जाएगा. ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह ये सारी उसकी ब्रांचेस में आ जाती हैं.
फिर उसके बाद नेचर ऑफ ड्रग जो है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आगे डिस्कस होगा, क्योंकि अभी हम फार्माकोलॉजी में जिस तरह से बात कर रहे हैं वहाँ पर अभी ड्रग की नेचर और फिर उसके बाद उसकी फ़िज़िकल नेचर, ड्रग का साइज़ और ये सब कुछ डिस्कस करने से हम टॉपिक से हट जाएंगे। इसे अभी ये मैं स्किप कर रही हूँ, बट बाद में मैं ये आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाऊँगी। अभी मैं जाना चाह रही हूँ ब्रांचेस के ऊपर। फार्माकोलॉजी की 2 मेन ब्रांचेस होती हैं। एक होती है फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है? तो इन्होंने पहले फार्माकोडायनामिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा यहाँ, और जो दूसरी ब्रांच होती है फार्माकोलॉजी की, दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है? फार्माकोलॉजी की मैनी ब्रांचेस हैं, ठीक है? कोई एक आप ब्रांच या कोई 2 ब्रांचेस आप नहीं कह सकते हैं, बट मेजर में आपको जो मिलेंगी वो 2 ही सिर्फ ब्रांचेस हैं, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो फार्माकोकाइनेटिक्स इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, ठीक है? फार्माको का क्या मतलब होता है? यस, यू आर राइट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि फार्मा जो वर्ड है ये फार्माकोन के ग्रीक वर्ड से निकला है और इसका मतलब है ड्रग, ठीक है? और काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है? फिजिक्स में आपने देखा होगा कि काइनेटिक्स का वर्ड जहाँ भी हम यूज़ करते हैं तो उसका हम रिलेशन देते हैं मूवमेंट के साथ। तो ड्रग की मूवमेंट देखनी है हमने, मीन्स क्या है, हमने देखना है कि इफ़ेक्ट क्या है बॉडी का ड्रग के ऊपर। जब एक ड्रग एक बॉडी के अंदर जाती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, ठीक है? वो किस तरह किस रूट से पास करती है, क्या उसके अंदर होता है, किस तरह वो बॉडी को रिलीफ देती है, ठीक है? अगर हमें कोई पेन हो रहा है और हम पेन किलर लेते हैं तो किस तरह वो पेन किलर हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और किस तरह से वो हमें हमारी बॉडी को ट्रीट करेगा, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इन प्रैक्टिकल एंड थेरेप्यूटिक्स अ ड्रग शुड बी एबल टू रीच इट्स इंटेंडेड साइट। अब इंटेंडेड साइट वो साइट होती है जहाँ पर जाके एक्चुअल में ड्रग ने इफ़ेक्ट करना है, ठीक है? तो मेजर जो है इंटेंडिंग साइट हमारा ब्रेन ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमारी ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। सो इससे ज़्यादातर चीज़ें ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, तो इस वजह से हम ब्रेन को ही इंटेंडेड साइट कंसीडर करते हैं, बट और भी कोई साइट हो सकती है, ठीक है? अगर किसी ड्रग ने जाके हमारी किडनी को ठीक करना है तो वो किडनी पे जाएगी, उसकी इंटेंडेड साइट किडनी होगी। अगर किसी चीज़ ने हमारे स्टमक को ठीक करना है तो वो वहीं जाएगी, ठीक है? सो अच्छा, इंटेंडेड साइट पे वो रीच करेगी आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही आप उसको ओरली टेक करते हैं या जिस तरह भी टेक करते हैं, तो इंटेंडेड साइट पे जाने के बाद अपना कोई भी कन्वीनियंट रूट लेगा वो, ठीक है? एक ड्रग के रूट्स होते हैं बॉडी के अंदर जाने के, ठीक है? वो ओरली भी आप ले सकते हैं ड्रग को, आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? 2 तरह के रूट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक होता है इंटरनल इंटरल और एक है पेरेंट्रल, ठीक है? इंटरल वो रूट है जिसमें हम ओरली ड्रग को इनटेक करते हैं, जबकि पेरेंटल रूट के अंदर हम ड्रग को एक्सटर्नली लेते हैं, मतलब जैसे इंजेक्शन के ज़रिए से हम दे देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे देते हैं। इसके अलावा भी कुछ रूट्स हैं जो कि मैं आगे जो है लेक्चर में आपको साथ डिस्कस करूँगी। अभी के लिए हम फार्माको काइनेटिक्स पे रहते हैं। सो बहुत से केसेस है जिसमें जो ड्रग का एक्टिव मॉलिक्यूल है इज़ सफिशेंटली लिपिड सॉल्युबल। अब ये ड्रग के जो मूवमेंट है ना, ये डिपेंड करते हैं ड्रग के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। किस तरह से डिपेंड करती है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। फॉर एग्जांपल एक ड्रग है और उसका साइज़ बड़ा है। फॉर एग्जांपल इसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? सॉरी, ये एक ड्रग है, इसका साइज़ इतना बड़ा है, इसके मुकाबले में एक मैं छोटी साइज़ की ड्रग बना रही हूँ, ठीक है? अब ये एक मेम्ब्रेन है, इससे इन्होंने पास करना है, ये एक ब्लड कैपिलरी है। आप सब लोगों को पता है कि ड्रग जो है उसने आखिरकार ब्लड में जाना होता है ताकि वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूम सके। अब इस ड्रग ने इस मेम्ब्रेन से गुजरना है। अब आपको क्या लगता है कि जिस ड्रग का साइज़ ज़्यादा है वो ईज़िली पास करेगा या जिस ड्रग का साइज़ छोटा है वो ईज़िली पास करेगा? ऑफ कोर्स, बिल्कुल सिंपल बात यही है कि हमारे पास जिस ड्रग का साइज़ कम है वो इजीली पास कर जाएगा, जबकि जिस ड्रग का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है वो पास नहीं कर सकेगा। इसी तरह ये ड्रग की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि उस ड्रग का रूट कैसे होगा, उस ड्रग की मूवमेंट कैसे होगी। अब जिस तरह इस ड्रग का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको पास करने में हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगेगी, ठीक है? और इस ड्रग का क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है तो ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह एक और भी इसका सिम्टम्स आ जाए, जैसे अगर एक ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, ठीक है?
तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेम्ब्रेन्स जो हैं वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती हैं, तो लिपिड सोलेबल इजीली चला जाएगा, जबकि जो वाटर सोलेबल होंगे उनको भेजने के लिए हमें एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनके लिए मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास इस तरह की कैरियर प्रोटीन्स लगी हुई होंगी जो फिर उनको अंदर मूव करवाएंगी। सो इस तरह जब कैरियर प्रोटीन के लिहाज से ड्रग जब मेम्ब्रेन के अंदर जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, फैसिलिटेटिव डिफीजन। ठीक है, सो ये ड्रग की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड कर रहा है सारा कुछ, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग की प्रॉपर्टी की वजह से ही चेंज हो जाते हैं। सो इन मैनी केसेस एक्टिव ड्रग इज सफिशेंटली लिपिड सॉल्युबल हो सकता है, बहुत से केसेस में स्टेबल होते हैं। इन सम केसेस हाउएवर इनएक्टिव प्रिकर्सर केमिकली इज रेडिली एब्जॉर्ब। सो कुछ केसेस में वो कहता है कि हमारे पास ड्रग के अंदर इनएक्टिव कंपाउंड, इनएक्टिव प्रिकर्सर्स भी होते हैं, एक्टिव प्रिकर्सर्स भी होते हैं, तो बाज़ औक़ात इनएक्टिव प्रिकर्सर ज़्यादा रेडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो सच प्रिकर्सर केमिकल्स आर कॉल्ड एज प्रोड्रग्स। ठीक है, तो प्रोड्रग्स हम उन्हें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो वैसे इनएक्टिव हैं बट वो जल्दी क्योंकि अब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो अब्जॉर्ब होने के बाद जाके वो क्योंकि वो एक्टिवेट होंगी, तो अभी वो एक्टिवेट नहीं है इसलिए हम उनको प्रोड्रग्स का नाम दे रहे हैं। In a few situations it is possible to apply a drug directly into the target tissue। ठीक है, कि हम लोग कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जैसे कोई भी इमरजेंसी केस आ गया, कोई हार्ट का पेशेंट है, तो हमने उसे फ़ौरन इंजेक्शन देना है ताकि हम उसकी लाइफ सेव कर सकें। तो ये इमरजेंसी केस आ जाता है जिसमें हम लोग डायरेक्टली जो ड्रग को टारगेट टिश्यू पे पहुंचाते हैं। ठीक है, ताकि फ़ौरन पेशेंट को रिलीफ दिया जाए, उसको सेव किया जाए, उसकी लाइफ को सेव किया जाए। तो ये इमरजेंसी सिचुएशंस में इस तरह होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सी सिचुएशंस हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइफ बचाने के लिए बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनको इंजेक्शन के फॉर्म में देना पड़ता है, हम उनको ऑलरेडी टेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये एक तो पेशेंट की भी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अगर एक फॉर एग्जांपल एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो अपने होश आवाज़ में नहीं है, हम उसे ऑलरेडी ड्रग नहीं दे सकते। ठीक है, तो फिर हमने जब उसको ड्रग देनी होती है तो हम इंजेक्शन के ज़रिए से देते हैं। इसी तरह अगर कोई पेशेंट कॉन्शियस है, बिल्कुल ठीक है, तो हम उसको ऑलरेडी ड्रग दे सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर भी। सो फॉर एग्जांपल टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट टू द इन्फ्लेम स्किन। ठीक है, अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, किसी बैक्टीरिया ने या वायरस ने एक्ट कर दिया स्किन के ऊपर, तो हम डायरेक्टली स्किन के ऊपर आपको कोई भी क्रीम देंगे, कोई भी ऑर्नामेंट देंगे ताकि आप वो अप्लाई करें और आपकी स्किन ठीक हो। ठीक है, सो बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। मोस्ट ऑफन आर ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द बॉडी कंपार्टमेंट। ठीक है, सो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि एक बॉडी के कंपार्टमेंट के अंदर, जैसे गट के अंदर दी जाती है। इस तरह मस्ट मूव इनटू द साइट ऑफ एक्शन फ्रॉम इधर कर, फॉर एग्जांपल ब्रेन में इन केस ऑफ एंटी सीवियर मेडिकेशन। ठीक है, तो बाज़ के हम डायरेक्ट बॉडी पार्ट्स के अंदर भी ड्रग दे रहे होते हैं। This requires that drug can be absorbed into the blood at the site of administration and be distributed to its section and permitted through various बैरियर्स दैट सेपरेटेड द कंपाउंड। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपने देखा है एक रूट, ऑलरेडी रूट में ड्रग किस तरह चलता है। ओरल कैविटी में सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद ऑसोफेगस, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड में जाता है और फिर वो अपनी टारगेट साइड पे जाता है। ये एक बहुत लंबा रूट है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने जब डायरेक्ट पेशेंट को बचाने के लिए या इमरजेंसी केसेस में या जैसे हम इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन में हम डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं और डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं हम ब्लड कैपलरी या ब्लड वेसल के अंदर, जिसकी वजह से ड्रग हमारा डायरेक्ट हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। सो इसमें पूरा लंबा रूट नहीं है, इसमें शॉर्टकट है। ठीक है, सो इस तरह से बैरियर से बच जाती है हमारी ड्रग, उसको डायरेक्ट जो है वो हम ब्लड में छोड़ देते हैं। फॉर अ ड्रग गिवन ऑरली टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम दीज बैरियर्स इंक्लूड। ठीक है, अगर कोई एक ड्रग है, ठीक है, एक ड्रग है, उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करना है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप लोगों को पता है कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का आप पीछे जो है वो पढ़ के आए हैं फिजियोलॉजी में कि ब्रेन के अंदर एक स्पेशल ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं। जैसे ये ब्रेन की एक कैपलरी है, अब ब्रेन की कैपलरी के बाहर जो है आपको इस तरह के कुछ एस्ट्रोसाइट सेल्स मिलेंगे। ये एस्ट्रोसाइट सेल्स जो होते हैं ये ब्लड मेम्ब्रेन कैपलरी को किसी भी तरह के
अनवांटेड सब्सटेंस अपटेक करने से रोकती है। ठीक है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है एस्ट्रोसाइट्स की। और ये क्या करते हैं कि ये सिर्फ सिलेक्टिव कंपाउंड्स को ही ब्रेन के कैपिलरी में जाने देंगे। जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होंगे उनको ये अपने अंदर ले लेंगे और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि अगर हम ड्रग देंगे और वो ड्रग यहाँ पर आती है तो क्योंकि एस्ट्रोसाइट्स हैं वो फ़ौरन देखेंगे कि ये जो ड्रग है ये ब्रेन को नहीं चाहिए, ये बल्कि गंदा है, तो वो उसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेगा और उसे ख़त्म कर देगा। सो इस तरह से ड्रग अपना इफ़ेक्ट ही नहीं कर सकेगा। सो यही वजह होती है कि हम ओरली ड्रग नहीं दे सकते जब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए कोई ड्रग देनी होती है। तो उसके लिए एक बहुत ही अजीब किस्म का मैसेज ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट के में CSF होता है। आपको पता है ब्रेन की मेनिंजेस के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम CSF कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हम ये पेशेंट से बाहर निकालते हैं, इसकी थोड़ी सी मिकदार हम पेशेंट से बाहर आउट लेंगे। उसके अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंसीडर करती हूँ, ये मैंने एक पेशेंट के ब्रेन से CSF का थोड़ा-सा निकाला है। अब इसके अंदर मैं ड्रग मिला लूँगी, जो मैंने ड्रग उस पेशेंट को देनी है मैं वो मिला लूँगी और दोबारा यही CSF मैं पेशेंट की बॉडी के अंदर इनसाइड इंसर्ट कर दूँगी। सो इस तरह भी ये तरीका होता है कि ड्रग को बॉडी के अंदर ले जाया जा सकता है। लेकिन ये बहुत पेनफुल मेथड है और बहुत ही मतलब सीरियस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट के ऊपर यही काम चल रहा हो, ऐसा नहीं है। इस तरह से नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत पेनफुल और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस किस्म का प्रोसेस है। सो इस वजह से ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत सीरियस कंडीशन आ गई है, पेशेंट को सेव करना है और यही सिचुएशन बस एंड है, तो इस वजह से फिर हम इस सिचुएशन को यूज़ करते हैं, वैसे इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। सो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा फाइनली आफ्टर ब्रिंगिंग अबाउट इट्स इफ़ेक्ट ड्रग शुड बी एलिमिनेटेड। ठीक है, अब ड्रग ने क्या किया, गई उसने इफ़ेक्ट कर लिया। जब ड्रग अपना काम कर देती है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पेन था, मैंने आपको पेन किलर दी, आपका पेन ख़त्म हो गया। ठीक है, जहाँ भी आपका पेन था, हेडेक था आपको, ये जो भी था वो ख़त्म हो चुका है। अब ड्रग के साथ क्या होगा, सवाल तो ये बनता है ना। सो कुछ भी नहीं होगा, ड्रग एलिमिनेटेड आउट हो जाएगी आपकी बॉडी से, क्योंकि ड्रग को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। सो वो स्ट्रीट आउट हो जाएगी आपकी बॉडी से और कुछ भी नहीं करेगी। परमिएशन क्या है, ड्रग परमिएशन प्रोसीड बाय सेवरल मैकेनिज्म। पैसिव डिफिजन इन एक्वस एंड लिपिड मीडियम इज कॉमन। ठीक है, अब परमिएशन किस तरह से हो रही है, आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर जो मटेरियल एब्जॉर्ब होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। अब आप कंसिडर कर लो कि ये जो एक पूरी मेम्ब्रेन यहाँ पर बनाई गई है, इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, ये पूरी एक मेम्ब्रेन जो बनाई गई है, ये आप समझ लो स्मॉल इंटेस्टाइन की एक मेम्ब्रेन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है एक। ठीक है, मैंने इस तरह से बना दी है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की दो मेम्ब्रेन्स हैं। अब इस मेम्ब्रेन में आप देख सकते हो ये सेल्स हैं, ये जो आपको इस तरह से ये दिखाए हुए हैं ये इसके सेल्स हैं। इन सेल्स को बहुत ज़्यादा कोलेब्रेट करके बहुत बड़ा करके आप लोगों को दिखाया गया है ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सको। अब क्योंकि देखो अब ड्रग है, ठीक है, ड्रग जो है वो आपके पास आई हुई है यहाँ पर। अब इस ड्रग ने यहाँ से यहाँ जाना है, कैसे जाएगी वो, ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जाहिर बात है डिफ्यूज़ होगी। ठीक है, कुछ एक्टिव डिफ्यूजन होगी, कुछ पैसिव डिफ्यूजन होगी। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आ रहा है, ट्रांसपोर्ट की टाइप्स, डिफ्यूजन की टाइप्स आ रही हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर उसका लीमन है। ठीक है, तो इन्होंने जो मेम्ब्रेन को बनाया है वो उस तरफ से बनाया है, यहाँ पर इस तरह से और इस तरह, इस तरह। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आप कंसीडर कर लो यहाँ पर है और यहाँ से ड्रग बाहर निकल के जा रहा है इंटरस्टिशियल में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, अब किस तरह से जाएगा, सबसे पहले तो देखो कि वो सिर्फ क्या कर रहा है, दो सेलों के दरमियान से गुजर रहा है। ये ए रूट था। ए रूट क्या है, थ्रू लिपिड मेम्ब्रेन। अब लिपिड मेम्ब्रेन से कौन सी ड्रग जाएगी, जो लिपिड सोलेबल होगी। इट्स मीन कि ये वाली जो ड्रग है ये लिपिड सोलेबल थी। ये क्या थी, लिपिड सोलेबल। तो अगर ये लिपिड सॉल्युबल ना होती तो ये ना जा सकती। ठीक है, अब कंसीडर कर लो कि वो ड्रग जो
अच्छा, अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो सेल के ज़रिए से जाती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो ड्रग्स हैं, ये इस मेम्ब्रेन से नहीं जा रही हैं, सेल के अंदर से जा रही हैं। पहले सेल के अंदर जा रही हैं, फिर सेल से वो बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ रही हैं। इस रूट को हम कहते हैं ट्रांस सेलुलर रूट। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग खुद देख लीजिएगा, मैं पूरे नहीं लिख रही। तो इसको जब जिसमें हम सेल से गुजर रहे हैं, गुजार के लेके जा रहे हैं ड्रग को, उसको हम ट्रांससेलुलर रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये बी पोर्शन के अंदर ये काम हो रहा है। अब हम चलते हैं जी सी की तरफ। सी में क्या हो रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आ चुकी हैं कुछ बाइंड रिसेप्टर्स आ चुके हैं और इनके साथ जो है वो बाइंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कुछ रिसेप्टर्स हैं जो ड्रग के साथ बाइंड अप हो रहे हैं और फिर वो ड्रग को अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे ही रिसेप्टर्स हैं जो इनको बाहर निकालने का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ अब यहाँ से इस तरह से रूट चल रहा है। ठीक है, यहाँ से ड्रग पहले इधर आ रही थी, फिर इधर से इधर जा रही थी। यहाँ पर पहले ड्रग ऐसे आ रही है ऊपर, फिर यहाँ से इधर आ रही है। सो इस तरह के कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, ये ड्रग पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मूव करना चाह रही है। ठीक है, अच्छा, लास्ट स्टेप में आप लोग देख सकते हो कि एंडोसाइटोसिस हो रही है। मेम्ब्रेन जो है वो अपने आप को इन्वेजिनेट कर रही है और इन्वेजिनेट करके ड्रग के गिर्द एक वेजिकल बना रहा है। इसी तरह जब एक्सोसाइटोसिस यानी हमने यहाँ से भी ड्रग को बाहर निकालना है तो एक्सोसाइटोसिस होगी, वही मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाएगी और ड्रग को बाहर निकाल देगी। सो इस तरह की भी मूवमेंट होती रहती है। तो ये एक्चुअली हमने दिखाया है कि किस तरह से ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर ड्रग अब्जॉर्ब नहीं होगी तो कोई भी फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे हम। ठीक है, सो यहाँ पर यही दिखाया गया। एक्वस डिफियन किस तरह से होती है आप लोगों को पता है कि एक्वस लिपिड डिफियन तो इजी है। ठीक है, क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन की वजह से इजीली जो है वो पास हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लिपिड बैरियर्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन जो ड्रग पास कर सकते हैं वो पास हो जाएंगी, लेकिन जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल नहीं है वो पास नहीं कर सकेंगी। इसी तरह कुछ एक्वस डिफियन से होती हैं, जैसे वाटर है वो डिफियन की जिस तरह से करते हैं। कुछ वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, उनको भी डिफ्यूज़ करवाने के लिए हमारे पास जो है वो प्रोटीन चैनल्स होते हैं, वो उनकी मदद से जाएंगी। इसी तरह आप लोग देख सकते हो कुछ स्पेशल यही कैरियर्स होते हैं जिन्होंने आपके जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होती चीज़ें उनको लेके जानी होती। इसी तरह कुछ होती है सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कैरियर्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये आपकी एटीपी को यूज़ करते हुए ये सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह लाएंगे। लेकिन जब एटीपी का यूज़ होता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है, यहाँ पर जो डिफियन हो रही थी पैसिव डिफियन, वो हमारी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ हो रही थी। ठीक है, बट जब एक्टिव डिफियन होगी तो उसमें हमारे पास लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो ड्रग मूव करना शुरू कर देगी। तो हम इसको एक्टिव डिफियन कहते हैं, और एक्टिव डिफियन एटी के बगैर नहीं होती। एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस का आप लोगों को पहले भी पता है। ठीक है, सो आई थिंक कि वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आयनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि क्या मतलब ड्रग की नेचर कैसी है। ज़्यादातर जो ड्रग्स है वो वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं। ठीक है, अब उस पर भी डिपेंड करता है कि ड्रग आयनाइज किस तरह से हो रहा है, वो किस तरह से पास आउट हो रहा है। अगर एक ड्रग है फॉर एग्जांपल वो वीक एसिड है, अब वीक एसिड किस तरह से होगा, HA होगा। ठीक है, H से मुराद हाइड्रोजन और A से मुराद है एसिड। अब ये डिसोसिएट होगा, आयनाइजेशन होगी इसकी, H पॉजिटिव एक प्रोटॉन निकल जाएगा और साथ इसमें एसिड नेगेटिव चार्ज में निकल जाएगा। अब आपको क्या लगता है, एक नेगेटिव चार्ज का एक मेम्ब्रेन से पास करना इजी है या एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का पास करना ज़रूरी है। ठीक है, ये HA एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब ये एक मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल का पास करना ज़्यादा इजी है, एक चार्ज मॉलिक्यूल का पास करना बहुत मुश्किल होता है। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो ड्रग जो वीक एसिड्स हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हाइड्रोजन आयन बढ़ाने चाहिए। अब कंसीडर करो कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं, अगर मैं हाइड्रोजन यानी मैं एसिडिटी बढ़ा रही हूँ, और एसिडिटी बढ़ी हुई कहाँ होती है, स्टमक में। यानी हम ये देख रहे हैं कि वीक एसिड का इफ़ेक्ट स्टमक में क्या होगा। अब यहाँ पर देखें क्योंकि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गए हैं तो रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा HA प्रोड्यूस होंगे, और HA हमने कहा है कि मेम्ब्रेन से ईज़िली पास आउट हो जाते हैं। तो इसी तरह से इससे मतलब ये लगता है कि वीक एसिड अगर आपकी कोई ड्रग है तो वो स्टमक में जाके ईज़िली डिसोसिएट हो जाएगी, मतलब ईज़िली जाके अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। लेकिन जो वीक बेस है, अगर कोई ड्रग है आपकी वीक बेस, वो इस तरह होगा, बी से मुराद बेस और एच से हाइड्रोजन आयन। अब इसकी डिसोसिएशन हम करेंगे एच पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पर चार्जेस आ जाते हैं इस वाले मालिक्यूल्स के ऊपर भी, और ये न्यूट्रल नहीं रहता है, जिसकी वजह से इसका पास करना मेम्ब्रेन से इजी हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज आता है क्योंकि बेस आपको पता है कि ले लेती है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके ऊपर चार्ज ना आए, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से बी का पास करना यहाँ से ईजी हो जाता है। तो अगर बी का पास करना इजी हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अल्कलाइन बढ़ा देंगे, यानी बेसिक मीडियम बढ़ा देंगे। और बेसिक मीडियम कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन में होता है। इसके अलावा बेसिक मीडियम हमारे पास मतलब स्टमक में सिर्फ एसिडिक मीडियम है, और ड्यूडेनम के प्रोक्सिमल पार्ट में हमारे पास एसिडिक मीडियम होता है। इसके अलावा जो ड्यूडेनम का प्रोक्सिमल पार्ट है या स्मॉल इंटेस्टाइन का बाकी जितना भी डिस्टल पार्ट है, उसके अंदर अल्कलाइन मीडियम होता है। तो जितनी भी अगर आपकी ड्रग, फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग है वो आप ले रहे हो और वो एक वीक बेस है, तो वो इजीली जाके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रोक्सिमल पार्ट में, सॉरी डिस्टल पार्ट में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो ये था आयनाइजेशन का कंसेप्ट कि किस तरह की वीक अगर एसिड है या वीक बेस है तो वो ड्रग आपकी, तो वो किस तरह से पास आउट होगी, किस तरह से नहीं होगी। अच्छा, ये उन्होंने कुछ ड्रग के ग्रुप्स बताए हुए कि किस तरह से ड्रग के ग्रुप्स की मूवमेंट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ अमाइड जो है वो ग्रुप की, अमाइन ग्रुप की इन्होंने डिफिशन जो है वो दिखाई भी है, बट इट इज़ क्वाइट इजी, और वही कंसेप्ट दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन कहीं लगा के और वो उनको भेज रहे हैं, और कहीं पर वो लगा के भेज रहे हैं। सो आई थिंक ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये फिर ड्रग की जो है वो इंफॉर्मेशन की तरफ आ जाता है। और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस दिखाया हुआ है कि उन्होंने कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई है, ठीक है, इस बुक के अंदर। और बस यहाँ तक हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट कर ली है, और अभी हमारा फार्माकोडायनेमिक्स रहता है, ठीक है। ये वाला सारा यहाँ से रहता है, ठीक है। तो मैं कल आपको फार्माकोडायनेमिक्स का ये वाला सारा टॉपिक, ये डायग्राम, इसके अलावा यहाँ पर इसके कुछ फैक्टर्स वगैरह ये लिखे हुए हैं, ये सारा जो है वो मैं आपको कल कवर करवाऊँगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को फार्माकोकाइनेटिक्स के सारे प्रिंसिपल की समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड में आपके लिए क्वेश्चन बैंक है, और क्वेश्चन बैंक बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है आपसे मेरा, कि आप ये बताएं कि अगर एक ड्रग है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, उसका एब्जॉर्ब होना ईजी होगा या नहीं। मॉलिक्यूलर वेट को आप अज्यूम करें कि वो साइज़ है, ठीक है। ड्रग का साइज़ कम है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट कम है, उसका पास होना इजी होगा। अगर एक ड्रग का साइज़ बड़ा है, मॉलिक्यूलर वेट भी बड़ा होगा, उसका पास होना इजी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह अगर एक ड्रग है उसकी लिपोफिलिसिटी जो है वो ज़्यादा है, तो वो इजीली पास हो, क्योंकि वो लिपिड सोल्युबल होगा, और जो लिपिड सोल्युबल नहीं है उसका पास होना इजी नहीं है, क्योंकि वो सैचुरेटेड डिफिन के ज़रिए से पास होगा। इसी तरह अगर कोई भी जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में मॉलिक्यूलर वेट ड्रग का ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी लिपोफिसिलिटी कम होती है। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस की अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो एंडोसाइटोसिस में आपको पता है कि विटामिन के जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर B1 B12 के ज़रिए से जो है वो एंडोसाइट होता है, और बॉडी के अंदर जो है वो आ जाता है। सो ये चीज़ें हैं, ये कुछ ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया डिपेंड करता है, एक सेल का सरफेस कितना है। आपको पता है कि इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह के विलाई होते हैं, और विलाई के ऊपर फर्दर माइक्रोविलाई होते हैं इस तरह के, ठीक है, जो कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं, और सरफेस एरिया जितना इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा हमारे पास अब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि उन्होंने विलाई बना के दिखाए हैं, क्योंकि वो एक इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन को शो कर रहे हैं।
इसके अलावा अगर आप देखो कि नॉन पोलर कोई भी मालिक्यूल आता है, नॉन पोलर का मतलब क्या है, चार्ज नहीं है उसके ऊपर, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो इजीली आराम से पास कर जाएगा। अगर एक मालिक्यूल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। वो आपस में अट्रैक्ट क्योंकि करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ड्रग का पास होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज वाली ड्रग है, तो ये आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे और ड्रग पास आउट नहीं होगी, यहाँ नहीं आएगी, वो आपस में ही रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें ब्लड का फ्लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा है, ब्लड तेज़ी से मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर ब्लड मूव कर रहा है। सो ब्लड का फ्लो जितना जो है कम होता जाएगा, फॉर एग्जांपल कम ब्लड अगर फ्लो कर रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, ठीक है। ये भी इफ़ेक्ट करता है ड्रग की। उसके ऊपर पीएच भी डिपेंड करती है, मैंने आपको बताया वीक एसिड वीक बेस का क्या रोल है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट करता है, दैट इज़ कॉन्टैक्ट टाइम, कि आपकी ड्रग का कॉन्टैक्ट टाइम कितना है, ठीक है। जितनी देर तक ये ड्रग यहाँ पर रहेगी, इस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी रहेगी, इस मेम्ब्रेन के करीब रहेगी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ड्रग डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी। कंसीडर करो अब ये वाली ड्रग यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर मैं इसको कह रही हूँ ये ख़त्म हो गई यहाँ से। कंसीडर करो अब यही ड्रग जो है वो थोड़ी इसके फासले पे है, यहाँ पर है, तो अब इसके इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है कि इतनी ज़्यादा फासले से कवर करे, जबकि ये जो इसके करीब ड्रग है उसके इजी चांसेस होंगे पास आउट होने के। तो इससे हाँ कि कांटेक्ट टाइम होता है कि जितना करीब होगा ड्रग मेम्ब्रेन से, उतना ज़्यादा कांटेक्ट टाइम होगा, उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, ठीक है। अब डायरिया, फॉर एग्जांपल हम डायरिया का केस डिस्कस करते हैं। तो डायरिया जब ज़्यादा हो जाता है या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हमें हो जाती हैं, तो उसमें माइक्रोबिलाई के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो सही तरह से जो है वो कंटेक्ट टाइम नहीं हो रहा होता, अब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है, कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर हमारे पास जो है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट केसेस में जो वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और बॉडी ज़्यादा वाटर एक्सीड करना शुरू कर देती है। तो डायरिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को ऐसी सिरप देते हैं या मेडिसिन देते हैं जिसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा होता है। अब जब फ्लूइड ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ कंसिडर करो कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूइड ज़्यादा आ गए, ठीक है, वाटर कम है, फ्लूइड की मिकदार ज़्यादा हो गई है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो वाटर गया हुआ होगा वो इसके अंदर वापसी आ जाएगी, यानी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बैक हो जाएगी, जिसकी वजह से हम डायरिया से ट्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। सो आई थिंक कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। बाकी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिए हैं। आई थिंक कि यही आज के लिए आपका लेक्चर काफ़ी है। अगर आपके फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको इसको ज़रूर क्लियर करूँगी। So thank you so much for listening to my lecture. I hope that you will like it. Please subscribe to my channel, like my videos, and also press the bell icon to get the notification of all the videos which I have uploaded. Thank you so much. Allah Hafiz.